Hello, my dear students. We are back with our oral pathology as well as oral medicine and radiology campaign. We have discussed many important questions as well as topics. Nowadays, what happens? You will be asked some questions which are related to patients or directly clinic based scenario they will be giving you. For example, they will be giving you some platelet counts, WBC count, etc. And when you are planning for this MCQ answer, you will be confused that in which conditions leukocytes were increasing, in which conditions platelet were increasing. All these things you have to take care, and while answering, you have to be sure that in these conditions, uh, okay, for example, anything increases or decreases. So today we'll be discussing important MCQs for the first 5 minutes, and after that we will start with our today's lecture for oral medicine. As I mentioned, the first question regarding ratio as well as abnormality. Here, albumin globulin ratio is reversed. So here in the question you have to go for positive findings: skeletal radiolucencies, reversed AG ratio, Benz Jones proteins. Okay, Benz Jones proteins. So when you are planning for this option or going for this correct option, you have to go with the positive findings. Here they have given you radiolucencies, albumin globulin ratio, but the more clear fact is Benz Jones proteins. It is important. Benz Jones proteins are directly associated with multiple myeloma. Okay, so in this way, you have to be clear with your answer. Next question: histiocytosis X, sometimes referred to as non-lipid reticuloendotheliosis, includes. Okay, what is included in histiocytosis X? So, answer is clear. They have given you a specific answer. All these things are associated with histiocytes. Letter Schiff disease, and Schuller-Christian disease, eosinophilic granuloma, histiocytoma. Okay, so you have to remember that. Apart, along with histiocytosis X, what are the inclusions? Irradiations to head region do not cause. Okay, when you give any X-ray radiation, all happens except what? Okay, here it is clearly that Ramsay-Hunt syndrome will be there. Rest of the options are directly associated with radiation. Next question: features of multiple bond radiolucencies. See, once again, these radiolucencies are been there. Okay, so you have to go with the lesions in which there are radiolucent and which are radio opaque. Condensing osteitis was radio opaque. Okay, so radiolucencies, multiple myeloma. In this way, you have to separate all the disorders or diseases. Here, what are the inclusions? Bone radiolucencies are there. Hypercalcemia is there. Increased calcium level. Okay. So when calcium level is increased and when calcium level is decreased, we will discuss that when physio is being taught to you, physiology. Okay. Parathormone or calcitonin. ठीक है. So what happens when
Parathormone is there. It will go with bone resorption, and so blood or serum calcium level will increase. Okay, and in case of calcitonin, it will go for more calcium deposition in bone, and it will lead to hypocalcemia. Okay, this is the common funda behind hormones, parathormone and calcitonin. Okay, now here they have given you hypercalcemia, hypophosphatemia. ओके, कैल्शियम बढ़ता है लेकिन फॉस्फेट कम होता है, ठीक है, और बॉन्ड की रेडियोलाइसिस देखने को मिलती है. एंड लेमिना ड्यूरा इज नॉट इंटैक्ट और लॉस. So this indicates it's the feature for hyperparathyroidism. Okay. So when you are preparing your notes near hyperparathyroidism, all these features you have to write in short. Radiolucencies will be there, increased calcium level will be there, decreased phosphate. Okay, and no lamina dura. In this way, your note should be there. Complex spots are an early intraoral manifestation of, ठीक है, complex spots. Here the answer is rubella. Okay, complex spots rubella में देखने को मिलते हैं. Now vesicles or bulla of the mucous membrane or skin are seen in the following except vesicles सब में देखने को मिलते हैं, बुल्ला भी देखने को मिलता है. क्या नहीं देखने को मिलता है वो आपको बताना है. वेसिकल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वेसिकुलोबुलस लीजन्स के बारे में पता होना चाहिए. कौन सा वेसिकुलोबुलस लीजन नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइए. लेप्रेसी है डिसीज, वो बैक्टीरिया से होता है, वायरल से होता है, या फंगस से होता है, या पैरासाइट से. पहले तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा. लेप्रेसी किससे होता है? इट्स ए बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल या पैरासाइट, किससे होता है? कमेंट करके मुझे बताइए. क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चंस भी कभी कभार लोगों को नहीं आते हैं. लेप्रेसी वो कौन सा डिसीज है? बैक्टीरियल, वायरल? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं. इट्स ए बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सिफिलिस है, इसका इटियोलॉजी क्या है, ये सब आपको परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर है सब डिसीज वेसिकल्स वाले. हर्पेस सिम्प्लेक्स है, हर्पेस जोस्टर है, पेम्फिकस है, एसएलई है, ठीक है. ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, उसमें वेसिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको. तो अभी हम हमारा लेक्चर चालू कर रहे हैं. इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना. Oral ulcers or vesiculobulous lesions. In our third year BDS, we have discussed ulcer definition. Okay, loss in the continuity
ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम होता है तो ब्रेक आ जाता है और कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अल्सर। ठीक है, फिर कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी स्टिकी। ओके, एपिथेलियम तो कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू जो एब्जॉर्ब करेगा स्टेन्स को, उससे आपको पता चलेगा कि वो अल्सरी है। ठीक है, ऐसे अल्सर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। कैसे? टोल्यूडिन ब्लू से। ये अच्छा वाला स्टेन है। हमारे सीनियर्स ने ऐसे बताया था कि जब स्टेन का कोई पूछा जाए और आपको नहीं आता है तो ये टोल्यूडिन ब्लू आपको लिख देना है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पक्का करना है। फिर आता है रेड वर्सेस एरेथ्रोप्लाकिया। ठीक है, एरेथ्रोप्लाकिया को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ठीक है, तो आपको पहले डायस्कोपी या ब्लांचिंग टेस्ट करना है। ठीक है, ब्लांचिंग टेस्ट कैसे करोगे आप? एलए आपको देना है पहले। ठीक है, फिर ब्लांच होता है तो वो एरेथ्रोप्लाकिया नहीं है, क्योंकि एरेथ्रोप्लाकिया लोकल एनेस्थीसिया से ब्लांचिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये रेड लीजन और एरेथ्रोप्लाकिया में ऐसा आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। फिर आता है टोल्यूडिन ब्लू टेस्ट। ठीक है, वो एक बेसिक है, उसका नेचर बेसिक है। तो वो क्या करेगा, जितने भी डीएनए एसिडिक है वहां पे उसका अट्रैक्शन होगा, वहां पे वो खींचा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें आपको देखना है कि टोल्यूडिन ब्लू से एसिडिक डीएनए में रिएक्ट रेप्लिकेशन में कोई चेंज आता है या नहीं। ठीक है, तो डिस्प्लास्टिक टिश्यूज जो होगी कैंसर वाली, ठीक है, उसमें डीएनए एसिडिक वाले ज्यादा होंगे। तो क्या होगा, टोल्यूडिन ब्लू वाली स्टेन से आपको पता चल जाएगा डिस्प्लेजिया है कि नहीं। ज्यादा टोल्यूडिन ब्लू यूज होगा, ज्यादा टोल्यूडिन ब्लू जो टेस्ट है स्टेन वो एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू, तो इसका मतलब है डिस्प्लेजिया है। ठीक है, तो टीबी और डिस्प्लेजिया में ये डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा ये इजी है, आपको ऐसे ही मैंने जैसे नोट्स बनाया ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, मैलिग्नेंट वर्सेस बेनाइन अल्सर्स। ठीक है, तो मैलिग्नेंट अल्सर्स क्या होंगे, आपने कोई इटियोलॉजी निकाल दी या कोई अल्सर भी निकाल दिया, ठीक है, तो वो रहेगा और वो स्वेलिंग रहेगा, वो नीचे के टिश्यू के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, वो आजू बाजू स्प्रेड भी हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब क्या है कि नीचे एक ऐसा खड्डा बना देना कि उसका बेस वहां पे बन जाएगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए पूरा हेल्दी टिश्यू भी थोड़ा निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेड वाइट लीजन्स भी हो सकते हैं मैलिग्नेंट। ठीक है, और सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी एक इंडिकेशन है मेटास्टेसिस वाला। ठीक है, बेनाइन अल्सर्स में ये सब देखने को नहीं मिलता है। एसओएस आप इटियोलॉजी निकालोगे तो वो हील हो जाएंगे, वो 7 दिन में हील हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिकल एनेस्थेटिक से, टॉपिकल एनेस्थेटिक स्प्रे से ऐसे हील हो जाएंगे। वेसिकुलोबुलस लीजन्स, ठीक है, अब उस पर क्या होगा, वो वेसिकल्स बन जाएगा, बुला बन जाएगा, फिर वो रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो अल्सर बन जाएगा। ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रॉमेटिक अल्सर्स में आपको क्या करना चाहिए, तो उसका इटियोलॉजी, कोई डेंचर खराब है आपका, कोई शार्प टूथ कस्प है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारे कॉजेज है ट्रॉमेटिक अल्सर के। ठीक है, पुअर ओरल हाइजीन है, कैलकुलस है, ये सब उसके रीजंस है। ठीक है, फिर उसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो वो पेन करेगा, पेशेंट को थोड़ा लो फीवर भी आ सकता है कभी कभार। और इसका मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इटियोलॉजी निकाल दी,
उसका रीजन निकाल दिया तो वो अपने आप हील हो जाएगा 1 to 2 वीक्स में। ठीक है, 3 वीक्स तक वेट करना है। अगर वो हील नहीं होता है तो आपको फिर बायोप्सी या कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब आएगी ट्रीटमेंट। तो टॉपिकल एसओएस ट्रीटमेंट देना है, टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, जो भी इटियोलॉजिक एजेंट है वो निकाल देना है। जैसे कि डेंचर शार्प है तो उसको पॉलिश कर देना है, स्मूथ कर देना है। टीथ शार्प है तो उसको ठीक कर देना है। तो वो तो ट्रीटमेंट का पहला ही सेंटेंस होना चाहिए, रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी। बाद में एसओएस ट्रीटमेंट, टॉपिकल एनेस्थेटिक्स, स्प्रे वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है, अब आता है एप्थस अल्सर। ठीक है, रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, कैंकर, शोर्स। उसका कोई इटियोलॉजी अभी तक पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि स्ट्रेस होता है। ठीक है, अब वो किसके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। एक तो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, डेफिशिएंसीज, इम्यूनिटी, सीलियाक डिसीज, क्रॉन्स डिसीज। ठीक है, और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स तो ट्रॉमा, स्ट्रेस, फिर कोई हॉर्मोन्स, कोई केमिकल्स, कोई फूड, ये सब। ठीक है, फिर उसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? पेशेंट को आप प्रॉपर हिस्ट्री लोगे, उसमें आपको जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है उसको निकाल देना है। बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, सीबीसी, ब्लड डेफिशिएंसीज, आयरन वाला क्योंकि एनीमिक अल्सर भी हो सकता है, थायराइड वाला, और लास्ट में सीरोलॉजी आप करवा सकते हो। ठीक है, अब आता है माइनर एप्थस अल्सर। तो माइनर में क्या आएगा? वो नॉन केरेटिनाइज्ड सरफेस पर देखने को मिलेगा। उसकी साइज 10 मिलीमीटर से कम होती है। 10 to 14 डेज में हील हो जाएगा और स्कारिंग नहीं होता है। छोटा होता है तो उसमें स्कार नहीं होता है। ठीक है, तो कोई पता नहीं चलता है आपको माइनर एप्थस अल्सर में। ठीक है, फिर आएगा मेजर। तो मेजर में क्या आएगा? वो म्यूकोजा पर देखने को मिलेगा। माइनर एप्थस अल्सर कहाँ पे देखने को मिले? नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजल सरफेस। और मेजर एप्थस अल्सर कहाँ देखने को मिलेंगे? जहाँ पे म्यूकोजा है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स के बाजू में, वहां पे देखने को मिलेगा। फ्लोर ऑफ द माउथ है, ठीक है, वहां पे। और प्रोड्रोमल सिम्टम्स मोर इंटेंस। प्रोड्रोमल का मतलब क्या है कि वो अल्सर बनता है उससे पहले थोड़े सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर हाई राइज हो जाती है, डायमीटर उसका ज्यादा होता है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा। वो कभी कभार वीक से मंथ भी रहता है, और स्कारिंग होता है। वो कभी कभार जब हील होता है और उसकी साइज ज्यादा होती है तो स्कार फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हेर्पेटिफॉर्म एप्थे। माइनर देखा केराटिनाइज्ड पर, मेजर देखा कि वो म्यूकोजल जहाँ पे माइनर सेरेब्रल ग्लैंड्स के नजदीक में ओपन होता है वहां पे होता है। ठीक है, माइनर होता है उसमें स्कार नहीं होता है, मेजर में स्कार होता है हीलिंग के बाद। अब आता है हर्पेटिक वाला, वायरस वाला एप्थस। ठीक है, तो वो 1 to 3 मिलीमीटर ईच होता है। छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबे लार्ज अल्सर्स हो जाते हैं। 10 to 14 डेज तक ही रहता है। खाली मेजर वाला है वो वीक्स टू मंथ रहेगा। मोर कॉमन इन वुमेन। ठीक है, तो 3 टाइप के एप्थस अल्सर आपको देखने को मिले, माइनर, मेजर और अर्पेटिफॉर्म एप्थ। उसकी तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी डिफ्रेंशिएशन करके। आपको कोई भी एमसीक्यू आए कि वो केरेटिनाइज्ड म्यूकोजा पर है तो वो माइनर एप्थस अल्सर नहीं होगा, ऐसे आपको कोरिलेशन करना है। ठीक है, अब उसका ट्रीटमेंट प्लान, उसका कंसिडरेशन कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, तो आएगा उसको फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी, एज। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी में कम हो जाएंगे और
एज में के साथ सिविरिटी उसकी कम होती है। ठीक है, जैसे एज बढ़ती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है और सिविरिटी भी कम होती है। किस में देखने को मिलता है? तो जो ज्यादा स्ट्रेस लेता है, वुमेन, लेडीज 40 इयर्स के बिलो, उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, और वो एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में देखने को मिलता है। गरीब लोगों में नहीं, अमीर लोगों की ये बीमारी है। ठीक है, फिर क्या आएगा? उसके फीचर्स कैसे कैसे दिखते हैं? तो बेसेट सिंड्रोम जैसे दिखेगा, पीरियोडिक फीवर, साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया, स्वीट सिंड्रोम, रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, रिकरेंट वाले उसमें दिखेगा। ठीक है, तो इसका ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नॉन फार्मा ट्रीटमेंट, बिना दवाई का ट्रीटमेंट क्या क्या आएगा? स्ट्रेस निकाल दो, आराम से उसको बोलो कि भूल जाओ सब, जो भी गम है वो चले जाने दो। ट्रिगर कम कर दो, पेशेंट जो हाइपर होता है उसको शांत कर दो। टूथपेस्ट देखो आप, उसमें कोई इटियोलॉजी है कि उससे अल्सर होता है तो उसको बदल दो। विटामिन बी सप्लीमेंट्स, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हम कॉमनली करते हैं, कोई भी आया तो चलो मल्टी विटामिन दे दो। लेकिन जिंक वाला जो होता है ना ट्रीटमेंट, वो एक बढ़िया काम करता है, मल्टी विटामिन विथ जिंक। अब ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट आएगी? तो प्रोटेक्टेंट आपको देना है, ओराबेस, जिससे अल्सर को प्रोटेक्शन मिले। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एम्ब्लेक्स नॉक्स दे सकते हो। ठीक है, फिर आएगा एनेस्थेटिक, उसमें क्या आएगा? टॉपिकल जाइलोकेन और बेंजोडाइमिन भी अभी लोग यूज करते हैं। मल्टीपल अल्सर्स होते हैं फेरिंग्स पर, गले में। ठीक है, तो बेंजोडाइमिन का रोल अच्छा आता है। फिर सीसीसी, एस्क्रीन, टॉप्सिन, डर्मोवेट, अल्ट्रावेट, ये सब। ठीक है, और रिंग्स, ठीक है, उसमें आएगा डेक्सामेथाजोन का रिंग्स। ओके, ये सब रिंग्स आएगा, तो ये उसका आपका ट्रीटमेंट प्लान हुआ। ठीक है, तो एब्सेस अल्सर में आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जो आपको पढ़ा है ना, वो अभी आपको प्रीलिम के लिए तो काम आएगा, आपको इंटरव्यू में भी ये सब बोल रहा है। एक बार उनके मुंह से निकल जाए कि आप एब्सेस अल्सर को कैसे मैनेज करोगे, तो आपको चालू ही कर देना है कि पहले मैं प्रॉपर हिस्ट्री लूंगी, प्रॉपर डायग्नोस करूंगी, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये आते हैं, फिर ये होता है, वो होता है, माइनर होता है, मेजर होता है, हर्पेटिक होता है। ट्रीटमेंट प्लान में नॉन फार्मा में ये करूंगी, फार्मा में ये करूंगी, ये सब आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइकन प्लानस। ठीक है, तो लाइकन प्लानस 5 टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलर, इरोजिव, प्लाक, एट्रोफिक और बुलस। उसका एसोसिएशंस, तो प्रोबेबली वो ऑटो इम्यून है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट रिएक्शंस उसका पता नहीं, लेकिन कोई बोलता है कि एमालगम से होता है, कोई बोलता है कि वो कोई लाइकेनोड रिएक्शन से होता है, ड्रग से होता है, कोई बोलता है एलर्जी से होता है, कोई हैबिट, लिवर डिसीज, इन्फेक्शन, बट एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करना है? ठीक है, डायग्नोसिस आपको देखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो बायलैटरल डिसऑर्डर है, वो कभी यूनिलैटरल होता नहीं है। ठीक है, और फिर लाइकेनोड रिएक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओरोलाइकल पेनिस की जैसे ही। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हिस्टोपैथोलॉजी में जाना पड़ेगा, अलग अलग दिखेगा दोनों में, ओरोलाइकल पेनिस और लाइकेनोड रिएक्शंस। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या आएगा? तो जितने भी वाइट लीजन्स है वो सब आ सकते हैं। कैंडिडियासिस, पेम्फिगोइड, पेम्फिगस वल्गारिस, डिस्कोइड, प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है? तो जो एंटीजन होता है ना, वो MHCI को बाइंड हो जाता है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ
आता है, वो केराटिनोसाइट्स पर वो बाइंड हो जाता है या फिर CD4 टी सेल्स पर बाइंड हो जाता है। ठीक है। एंटीजन, एंटीजन का पता नहीं कहाँ से वो आता है, अननोन है वो एंटीजन। एमालगम से आता है या कोई रिस्टोरेशन से आता है, एलर्जी टू फूड होता है तब भी एंटीजन आ जाएगा। ये सब उसके इटियोलॉजिक एजेंट है। ठीक है। अब वो एंटीजन बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, CD8 जो सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स CD8 वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद वो साइटोटॉक्सिक जो सेल्स को खराब करते हैं ना, तोड़ने वाले कंपोनेंट्स रिलीज करते हैं और बेसल सेल को तोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये उसकी मेन रीजन है। ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट गई तो उसमें स्प्लिट हो जाएगा, एपिथेलियम ऊपर चला जाएगा कनेक्टिव टिश्यू से और थोड़ा स्प्लिट हो जाएगा। ये उसका मेन पैथोलॉजी है, कैसे होता है ये। ठीक है। अब आता है सिम्टम्स। तो क्या क्या होगा, तो आपको पेप्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है। थोड़ा इरोजिव या एलिवेटेड सरफेस देखने को मिलेगा म्यूकोजा पर। ठीक है। और जहाँ पे म्यूकोजा होता है वहां पे आपको इंटरसेक्शन लाइंस दिखेगी। ठीक है। तो वो बोलते हैं विकेम स्ट्राया। ठीक है। लाइंस को स्ट्राया नहीं बोलते हैं, जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट होती है, व्हाइट लाइंस एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो उसको बोलते हैं विकेम्स स्ट्राया। ये एक लाइन हुई, ये दूसरी लाइन हुई, तो इसको बोलते हैं विकेम स्ट्राया। फिर कहाँ पे होता है, तो अपार्ट फ्रॉम ओरल म्यूकोजा वो स्किन पर भी होता है। तो कहाँ कहाँ पे, तो फ्लेक्सर सरफेस पर, रिस्ट के ऊपर, लंबर रीजियन, आईलिड्स, साइंस कैप्स, जेनेटेलिया, माउथ। ठीक है। कभी कभार वो महीनों से सालों तक रहता है। और हाइपरट्रॉफिक होता है वो ईयर टू डेकेड्स रहेगा। ठीक है। ये स्किन वाला है। अब आता है ओरल वाला हमारा लाइकन प्लेनस। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो रेटिकुलर, इरेजिव, प्लाक, एट्रोफिक और बुलस। ठीक है। तो रेटिकुलर में क्या आएगा, आपको प्लाक वाला एरियाज, रेटिकुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होंगे उसको बोलेंगे हम बिकम्स स्ट्राया। ठीक है। इरोजिव होगा ना, वो थोड़ा अल्सर टाइप होगा। तो अल्सर जो होगा वो आपको रेडिश टाइप दिखेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हम कैसा, इरोजिव या रेड। ठीक है। वो अल्सर जैसा दिखेगा आपको। फिर प्लाक, तो वो लुकोप्लाकिया जैसा दिखेगा। तो लुकोप्लाकिया का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा वो क्या आएगा, वो प्लाक टाइप ऑफ लाइकन प्लानस आएगा। और लाइकन प्लानस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा तो वो पैची लुकोप्लाकिया आएगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कहाँ कहाँ पे दिखेगा प्लाक वाला लाइकन प्लानस, तो डोर्सम ऑफ टंग। ठीक है। फिर अदर्स, तो एट्रोफिक और बुलस। एट्रोफिक मतलब उसकी साइज कम हो जाएगी धीरे धीरे, और बुलस मतलब इट्स लाइक वेसिकल विच विल बी इंक्रीजिंग इन साइज। ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर लाइकन प्लानस भी होगा और एमालगम लाइकेन और रिएक्शन भी होगा। तो आपको ये भूल नहीं जाना है कि हर बार जो व्हाइट लाइंस होती है वो लाइकन प्लानस ही होता है। कोई भी लीजन आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा, लेकिन आपको कंफर्म डायग्नोसिस नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि आई वुड लाइक टू गो फॉर प्रॉपर हिस्टोपैथ एज वेल एज प्रॉपर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। तब जाके आपको पक्का पता चलेगा कि डिसऑर्डर क्या है। एग्जाम में, इंटरव्यू में ये लोग पूछेंगे, ठीक है, कि ये लाइकन प्लानस, आपको कैसे पता चलेगा कि लाइकन प्लानस है। तो आप खाली बोलोगे कि मुझे बिकॉज यहाँ पर व्हाइट लाइंस दिखते हैं, ये दिखते हैं, तो दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर। आपको क्लियर कट लेना है कि वो प्रॉपर हिस्ट्री लूंगी मैं, प्रॉपर डायग्नोसिस करूंगी, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका फूड क्या है, लीजन्स क्या है, उसके मुंह के अंदर कोई रिस्टोरेशन है, तब जाके वो लाइकन प्लानस की ओर खींचा जाएगा। ठीक है। अब ट्रीटमेंट। ठीक है। तो ये जो लीजन्स होते हैं उसमें कॉमन ट्रीटमेंट ही आती है। ठीक है। और कुछ आती नहीं है।
स्टीरॉइड्स आते हैं टॉपिकल, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, ये सब उसमें आएगा। ठीक है, ये नोट्स हम आपको देने वाले हैं, तो थोड़ी ट्रीटमेंट थोड़ी डीप में कर देना है। ठीक है, टॉपिकल एनेस्थेटिक्स होता है, टॉपिकल ये होता है, स्टीरॉइड आ गया देखो यहाँ पे, केनाकोट देते हैं ना हम लोग, वो वाला। ठीक है, स्टीरॉइड्स आएगा, फ्लूनाइस फ्लोसियोनिड जेल आएगा, क्लोबेटोसोल आएगा, ये सब उसमें आएगा। ठीक है, और ये एंटी मेटाबॉलाइट्स भी आएंगे, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, ये भी आप स्क्रीन दे सकते हो। ठीक है, कुछ लोग तो ये करते हैं कि डेक्सामेथासोन का, ठीक है, इंजेक्शन ही आप या फिर गार्गल्स आप दे सकते हो। ठीक है, अब आता है ओरल पेम्फिगोइड। इट इज ए वेसिकुलोबुलस लीजन। वो क्यों होता है? तो ऑटो इम्यून होता है। ठीक है, आईजीजी ऑटो एंटीबॉडीज हो ना, उससे ये ऑटो इम्यून रिएक्शन है। वो किसको अटैक करेगा? एक प्रोटीन को अटैक करेगा, किस नाम का? BPA-G2। ठीक है, और वो प्रोटीन है ना, वो क्या करता है? वो हेमिडेस्मोसोम्स का एक पार्ट है। हेमिडेस्मोसोम्स किसको बोलते हैं? दो सेल को कनेक्ट करते हैं ना, उसको हेमिडेस्मोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, और बेसल सेल्स, वो हेमिडेस्मोसोम्स लिंक द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू बेसल सेल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हेमिडेस्मोसोम्स खराब हो गया, वो कम हो गए, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है उससे बेसमेंट वाले सेल से बेसल वो सब चले जाएंगे, तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और आपको ये एपिथेलियम थोड़ा ऊपर आएगा ऐसा लगेगा, इसलिए ये लीजन बुल्ला टाइप है। ठीक है, बुल्ला मतलब फुगा, फुगा टाइप। तो IgG अटैचेस टू BPA-G2। ठीक है, और C3 कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, और दूसरा ये भी है कि बेसल मेम्ब्रेन की एपिथेलियम को डिटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो दो मैकेनिज्म यहाँ पे दी है। पहले तो ऑटो इम्यून दिया है, ठीक है, और फिर दूसरा वाला ये दिया है कि अलग जगह पर होगा, C3 कॉम्प्लीमेंट पर भी वो वहां पे होता है। ठीक है, तो पहला कौन सा आया? एक प्रोटीन जो है हेमिडेस्मोसोम्स के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। हेमिडेस्मोसोम्स खराब हो गए, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से बेसमेंट सेल्स अलग हो गए, एक ये लॉजिक है। दूसरा ये है कि ऑटो इम्यून हुआ ना, इसलिए C3 कॉम्प्लीमेंट को प्रेसिपिटेट कर दिया और बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ दिया। ठीक है, ये भी मैकेनिज्म है। किसको वो अफेक्ट करेगा? तो वो जिंजाइवा को अफेक्ट करता है, म्यूकोजा को नहीं। लाइकन प्लैनस म्यूकोजा को ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी कभार आंखों पर भी वो आता है, पेम्फिगोइड रिएक्शन, और ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कंसिडरेशंस। ठीक है, तो डिस्क्रोमेशन हो जाएगा म्यूकोस मेम्ब्रेन का, म्यूकोस मेम्ब्रेन उसका पैटर्न चला जाएगा। ठीक है, मोस्ट पेटेंट्स आर मोर देन और ग्रेटर देन 60 ईयर्स, एल्डर देन 60 ईयर्स, दोनों में इक्वल टेंडेंसी है, मेल और फीमेल में। ठीक है, और इट इज रेयरली रिलेटेड टू स्किन लीजन। तो लाइकन प्लैनस है वो स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, पेम्फिगोइड है वो स्किन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे आपको डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। और ट्रीटमेंट, अगर आंख का दिक्कत है तो ऑप्थेल्मोलॉजी में भेजिए। बार बार एक ही आंसर आएगा, स्टीरॉयड क्रीम, स्टीरॉयड ड्रिंक्स, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, डेप्सोन, टेट्रासाइक्लिन, नियासिनामाइड। ठीक है, ये कॉमन आंसर ही उसमें आते हैं ये सब डिसऑर्डर्स। पेम्फिगस वल्गारिस, ठीक है, उसमें क्या होता है? जो डेस्मो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? सेल्स को होल्ड करेंगे एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, DST। अब ऐसा कोई डिसऑर्डर आया जहां पे ये DST को तोड़ दिया, आगे आपने देखा कि हेमिडेस्मोसोम्स को तोड़ रहे हैं,
जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल सेल्स को कनेक्ट करता है। इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल सेल्स के बीच स्प्लिट हो गया और एपिथेलियम ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या है, डेस्मोग्लेन्स है, ठीक है। पेम्फिगस वल्गारिस में डेस्मोग्लेन्स को ऑटो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। पहले DS3 को करते हैं और फिर DSG1 को करते हैं, ठीक है। अब ये आपको प्रीलिम में पूछा भी जा सकता है, टफ पेपर बनाना है तो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोएंटीबॉडीज इन केस ऑफ पेम्फिगस वल्गारिस। आपको आंसर रख देंगे DSG4 3 2 1। तो आप देखोगे कि प्रवीण सर ने ये लेक्चर लिया फिर भी हमको नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे आपको इमेजिन करना है, ठीक है। फिर ओरल मिकोजा जो होता है ना, उसमें DSG कौन सा वाला 3 वाला ज्यादा होता है, ठीक है। और स्किन में 1 होता है, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी क्या क्या आएगी उसकी, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ज़ैंक सेल्स, ठीक है। रेटेपेक्स होंगे ना, वो नॉर्मल हो जाएंगे और एपिथेलियल थिकनेस भी नॉर्मल होगी, ठीक है। वेसिकल फॉर्म हो जाएगा जहाँ पे एपिथेलियम स्प्लिट हो गई है, ठीक है। एपिथेलियम में स्प्लिट आ जाएगा और वहाँ पे वेसिकल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये उसका हिस्टोपैथोलॉजी है। और सुप्रा बेसिलर क्लेफ्टिंग, बेसल सेल है, बेसल मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्लेफ्ट जैसा हो जाएगा। क्लेफ्ट मतलब कट, ठीक है। और उसमें फिश नेट पैटर्न दिखेगी। तो ये हिस्टोपैथ में से ही 5 MCQs बन सकते हैं। फिश नेट पैटर्न कहाँ दिखने को मिलती है, ज़ैंक सेल्स कहाँ देखने को मिलती है, सुप्राबेसिलर क्लेफ्टिंग कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। सुप्राबेसिलर अब भी आता है और सब बेसिलर भी आता है। तो ये आपको परफेक्ट याद होना चाहिए कि कौन किस में सुप्रा है और किस में सब है, ठीक है। तो क्या है, मेनली अफेक्ट्स टॉर्सो स्किन, ठीक है। टॉर्सो मतलब चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है ना, वो अफेक्ट होता है। फिर 70% में ओरल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। बाकी सब जगह पर भी होता है। और पेम्पिगस वल्गरिस का 6th MCQ जो बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निकोल्स की साइन क्या होता है। आप स्किन को प्रेस करोगे ना, तो दूसरी जगह से ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएगा। ब्लिस्टर मतलब थोड़ी स्किन दूसरी जगह से ऐसे एलिवेटेड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल स्किन में नहीं होता है, लेकिन निकोल्स की स्काइन में क्या होता है, आप यहाँ से, ये स्किन है, यहाँ प्रेस करोगे ना, तो यहाँ से ब्लिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब उसका कंसिडरेशन और ट्रीटमेंट प्लान, स्किन में डिस्कमेशन हो जाएगा। पेशेंट्स जो है 40 to 60 ईयर्स में देखने को मिलेंगे। मेडिटेरेनियंस में देखने को मिलता है। कैन बी एसोसिएट विद ड्रग्स, कभी कभार ड्रग के साथ भी रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ भी जितने भी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए, लाइकन प्लेनस, पेम्फिगर्ड, पेम्फिगस वल्गारिस, तो आपको तो ये पता चला कि उसका कोई इटियोलॉजी है नहीं। तो बहुत सारी इटियोलॉजी है, ऑटो इम्यून है, एलर्जी है, कोई फूड से एलर्जी है, या इम्यूनोडेफिशिएंसी के हिसाब से, ऐसे बहुत सारे आप आंसर्स देख सकते हो। ड्रग के साथ लेना देना है, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट के साथ लेना देना है, ठीक है। एलर्जी टू सन भी बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ट्रीटमेंट, तो सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेशन देना है, तो प्रेडनिसोन से देना है, एज़ेथियोप्रान से देना है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये क्या करता है ट्रीटमेंट, इम्यूनिटी कम करना है, इम्यूनिटी को सप्रेस करना है, ठीक है। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को निकालने के लिए क्या दोगे, प्लाज्मा फेरेसिस पे आप दे सकते हो, ठीक है। और जिस केस में इम्यूनोग्लोबुलिन डिफेक्ट है, डेफिशिएंट है, उसमें आप इंट्रावेनस भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये उसका ट्रीटमेंट आया बेसिकली इम्यूनोसप्रेशन वाला। प्रोग्नोसिस, कभी कभार ही उसका रिमिशन होता है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आया प्राइमरी हर्पेटिक जिंजाइवो स्टोमेटाइटिस। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। सब बच्चे हो, क्लेवर है, कोई डाउट ही नहीं होता है। अब आता है प्राइमरी हर्पेटिक जिंजाइवो स्टोमेटाइटिस। ठीक है, हर्पिस के कारण होता है, तो आपको हमने पढ़ाया था जब हमने हर्पिस किया था, पहले प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, उसका वो गैंग्लियन में रह जाता है लेटेंसी, और दूसरी बार ट्रिगर होता है तब जाके वो बाहर आते उसके फीचर्स। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो क्या क्या होगा, तो वो एपिथेलियल सेल्स को परेशान करेंगे या सेंसरी न्यूरॉन्स को परेशान करेंगे। ठीक है, फिर होस्ट डीएनए को वायरस रिप्रोग्राम कर देगा और वहां पे उसका घर बना लेगा, लोकल न्यूरॉन्स में स्प्रेड हो जाएगा और ट्राइजेमिनल न्यूरल गैंग्लियन में वो स्टोर उसका घर बना देगा। ठीक है, लेटेंट हो जाएगा। तो वो प्राइमरी हर्पेस के बारे में बताया है। अब वो लेटेंट तो हो गया, लेकिन कोई भी ट्रिगर मूवमेंट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है या अननोन ईटियोलॉजी के कारण वो फिर से रीएक्टिवेट होता है और सारे फीचर्स आते हैं पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो हिस्ट्रियोसाइट हिस्टोलॉजी में क्या क्या देखने को आएगा, उसमें केराटिनोसाइट मर जाएंगे, केराटिन वाले सेल्स, तो बलूनिंग डीजनरेशन देखने को मिलेगा। फिर जो भी केराटिन वाले सेल्स है, ठीक है, उसके बीच में जो कांटेक्ट है वो चला जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं एक्एंथोलाइसिस। ठीक है, फिर आएगा डीजनरेटिंग फ्यूज्ड प्लस मल्टीन्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया में कोई स्पेसिफिक इनफिल्ट्रेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फीचर्स जो आप देख रहे हो हिस्टोलॉजी वाले, बेहतर है कि आप डायग्राम ड्रॉ करके ही पढ़िए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रिगर्स, कौन कौन सी चीज वो जो लेटेंट था वायरल वाला इन्फेक्शन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में, उसको ट्रिगर करता है। तो एक आएगा डेंटल ट्रॉमा। ठीक है, दूसरा आएगा फिजिकल ट्रॉमा, तीसरा आएगा स्ट्रेस। ठीक है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, जितने भी अल्सर्स है ना वो सब आएंगे इसमें। ठीक है, और डायग्नोसिस कैसे करोगे, हिस्ट्री से आप लोगे। ठीक है, कभी कभार वायरस को आप कल्चर भी कर सकते हो। अब सिम्टम्स, तो ब्लिस्टर्स, फीवर, वहां पे बॉयल्स हो जाएंगे, पेशेंट को फीवर आ जाएगा, वेसिकल्स हो जाएंगे, ये सब उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सोर माउथ हो जाएगा, खाने में दिक्कत, और रिकरेंट में जो होगा उसमें क्या आएगा, उसमें थोड़ा बर्निंग हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा। ठीक है, फिर वेसिकल्स फॉर्म हो जाएंगे और फिर जहाँ पे अल्सर वाला होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाला जो होता है ना वो जनरली बच्चों में होता है। ठीक है, ये सब चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, फिर वो लेटेंट हो जाएगा गैंग्लियन के अंदर, और ये रिकरेंट वाला जो है वो एडल्ट्स में होता है। ठीक है, 7 दिन में वो अपने आप चल जाएगा। सिम्टोमेटिक आपको पेन किलर्स वगैरह देना है। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो सिम्टोमेटिक देना है, एनाल्जेसिक्स दे सकते हो। ठीक है, टॉपिकल आप पेन किलर दे सकते हो, ये आपको याद रखना है। अर्पेंजिना, ठीक है, उसमें क्या आएगा, इट इज मोस्ट ड्यू टू कॉक्सेकी वायरस। अब ये याद रखिए, ये क्वेश्चन तो एक आता ही है,
कि भाई पोलियो डिसीज है, पोलियोमाइलाइटिस, वो कौन से वायरस से होता है, ठीक है। फिर हर्पेंजिना है, वो कौन से वायरस से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको आपके नोट्स में लिख देना है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, तो जितने भी वायरल डिसऑर्डर्स है उसमें ये एक ही चीज आएगी, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नेक पेन, अल्सर जैसा दिखेगा, फिर रेडिश कलर कलर दिखेगा, ये सब ट्रीटमेंट। तो एसओएस, ठीक है, डाइट देना है, हाइड्रेशन देना है, एंटीपायरेटिक्स। तो हर्पीस में कोई दिक्कत नहीं है वायरल ट्रीटमेंट में, उसमें तो कॉमन ही सब आपको आंसर देना होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब आता है पिगमेंटेड लीजन्स, ठीक है। फिजियोलॉजिक भी हो सकता है, एक इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, स्मोकिंग के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। हमारा फॉक्सिक पीडीएफ रीडर नाराज हो गया। 2 मिनट में वो नोट्स ढूंढनी पड़ेगी, फिर मिल जाएगी। यस, अब आए पिगमेंटेड लीजन्स। तो पहले तो क्या होगा, वो मेनली मेलानोसाइट के हिसाब से, ठीक है। अब पिगमेंटेड लीजन्स के अंदर फिजियोलॉजिक आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, तो मेलानोसाइट्स का वर्क ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए वो फिजियोलॉजिक थोड़ा पिगमेंटेशन ज्यादा रहेगा। कौन कौन से, तो म्यूकोजल मेलानिटिक मैक्यूल होता है, स्मोकिंग वाला होता है, और सुपरफिशियल मैलिग्नेंट मेलानोमा। उसमें सिम्टम्स क्या आएगा, तो आपको पैच दिखेगा, ठीक है, जिंजाइवा पर स्किन जैसा मैच दिखेगा, क्योंकि मेलानोसिस ज्यादा है, दोनों साइड होता है। और जिंजाइवा का आर्किटेक्चर नॉर्मल होगा, लेकिन कलर में ही डिफरेंस आएगा, पिगमेंटेशन में ही डिफरेंस आएगा। ट्रीटमेंट तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है, वो नॉर्मल है। अब इन्फ्लेमेशन के बाद पिगमेंटेशन हो जाना, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। इन्फ्लेमेशन होता है, बाद में वहां पे थोड़ा स्कार बनता है और वहां पे थोड़ा कोई ना कोई रिएक्शन होता है, इसलिए वो ऐसा हो जाता है, ठीक है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। फिर स्मोकिंग, पैलेट पर देखोगे तो थोड़ा स्मोकर्स पैलेट में मेलानोसिस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है, तो फिजियोलॉजिक पिगमेंटेशन, प्यूर्स जगर्स डिसीज, एडिसन्स और मेलानोमा, ठीक है। तो आपको स्मोकिंग बंद करवा देना है, तब जाके वो ठीक हो जाएगा। फोकल मेलानोसिस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, मेलानोटिक मैक्यूल जैसा दिख रहा है, जहाँ पे एक जगह पर फोकस होकर वो सेल्स इकट्ठा हो गया है, ठीक है, मेलानिन वाले सेल्स, मेलानिन ओवर प्रोडक्शन हो गया है और एक जगह पर ही, इसलिए उसको बोलते हैं फोकल मेलानोसिस, ठीक है। उसकी कोई ट्रीटमेंट होती नहीं है, और कभी कभार इतने ज्यादा होते हैं तो एक सिंड्रोम सजेस्ट करते हैं। फिर न्यूवर्ड, ये हमने थर्ड ईयर सर्जरी में पढ़ा था, ठीक है। मेलानोसाइट्स एक जगह पर जंक्शन पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, तो ब्राउन ब्लैक मैक्यूल जैसा दिखेगा, कभी कभार बॉडी सरफेस पर भी दिखेगा, ठीक है। म्यूकोजा के अंदर होगा तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, और कंपाउंड भी दिखेगा आपको। तो ये अलग अलग लोकेशन
और अलग अलग क्राइटेरिया उसके दिया हुआ है। ठीक है, ब्लू नेवी जो होगा वो ज्यादातर माउथ में देखने को मिलेगा, पैलेट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो मेलानोटिक मैक्यूल्स है, ठीक है, वो सब क्या है, कंजेनाइटल हो सकते हैं, कभी कभार एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंजेनाइटल ही होते हैं। उसका कोई ट्रीटमेंट या उसका कोई क्राइटेरिया है नहीं। ठीक है, माउथ में जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको इंट्राम्यूकोजल नेवाई देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा ब्लू नेवाई। ठीक है, अब क्यूटेनियस मेलानोमा, स्किन के ऊपर मेलानिन वाले सेल्स प्रोडक्शंस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए आपको अलग अलग देखने को मिलेगा स्किन के ऊपर। तो उसमें भी ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, फिर ड्रग इंड्यूस्ड में क्या होगा, डिफ्यूज स्किन की पिगमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, इसलिए। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि मिनोसाइक्लिन जो ड्रग है ना, उसके साथ उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, पिगमेंटेशन का। तो मिनोसाइक्लिन यूज करते हो ना, तो उसका पिगमेंटेशन के साथ रिलेशन है। फिर आपने एमलगम ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे एमलगम का थोड़ा स्पॉट बन जाएगा, एमलगम टैटू उसको बोलते हैं। फिर आता है एडिसन्स डिसीज। ठीक है, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में दिक्कत आया तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। कौन सा वाला हार्मोनल बढ़ेगा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये बढ़ेगा तो क्या होगा, मेलानिन ज्यादा बनेगा, क्योंकि मेलानोसाइट्स उसमें ज्यादा रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो एडिसन्स डिसीज में क्या होता है, इंक्रीज्ड मेलानोसाइट्स देखने को मिलेंगे, और वो मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन इज रिलेटेड टू एडिसन्स डिसीज। ठीक है, प्यूज जैगर सिंड्रोम। ठीक है, वो क्या है, वो एक इनहेरिटेंस वाला है, और क्रोमोसोम 19, ये याद रखो, 19 क्रोमोसोम पर वो इफेक्ट करता है। उसमें लीजन्स क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्रेकल ऑन हैंड, पेरियोरल स्किन एंड ओरल म्यूकोजा। वो चाइल्डहुड में डेवलप होता है। ठीक है, सनलाइट में वो डार्क होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। ठीक है, और वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसलिए तो बोला कि वो इनहेरिटेड है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। ठीक है, ये बैक है, वहां पे देखो इतने धब्बे है सारे मेलेनिन वाले। ठीक है, तो ये कैफेउलोट मैक्यूल्स है। ठीक है, हमने फाइब्रस डिस्प्लेजिया में भी ये देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लीश नोड्यूल्स है आइस पर। तो ये लोग क्या करेंगे, आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे, लीश नोड्यूल्स इज एसोसिएटेड विद विच डिसऑर्डर। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ फंगीफॉर्म पेपिला भी इन्वॉल्व है। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्या क्या देखने को मिलेगा, काफेवोलॉइड स्पॉट्स, फिर लिस्ट नोड्यूल्स, फंगीफॉर्म पेपिला भी इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर आता है फाइब्रस डिस्प्लेजिया, ये तो हमने कल ही करवाया था। ठीक है, वो दो टाइप के आते हैं, जेफ और ऑलब्राइट। जेफ में दो चीजें आएगी, बॉर्न और एंडोक्राइन। एल्ब्राइट में बॉर्न, एंडोक्राइन और पिगमेंटेशन, कैफेओलेट वाले मैक्यूल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फाइब्रस डिस्प्लेजिया में क्या होता है, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें जीएसए सिग्नलिंग में दिक्कत आता है।
ठीक है। तो वो क्या करेगा, बोन सेल को प्रोलिफरेट करने से अटकाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू बन जाएगा। बोन सेल जो बनता है और बोन टिश्यू वो ठीक से बनेगा नहीं, और बोन के बदले बदले फाइब्रस जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये उसका रीजन है। फिर जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, ये भी हमने करवाया था जब आपको हमने ओरल पेरियो करवाया था तब। ठीक है, इंफ्लेमेटरी जिंजाइवल एनलार्जमेंट और ट्रॉमेटिक वाला। ठीक है, एक हाइपरप्लास्टिक वाला आता है। यहाँ पे तो क्लियरली क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। फाइबर एपिथेलियल पॉलिप में क्या देखने को मिलेगा, पाइजेनिक ग्रेनुलोमा में क्या देखने को मिलेगा, पेरिफेरल ओसिफाइंग फाइब्रोमा और पीजीसीजी। ठीक है, तो फाइबर एपिथेलियल पॉलिप में उसके दूसरे नाम है फाइब्रस इप्यूरिस, जिंजाइवल फाइब्रोमा और फोकल जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया। पाइजेनिक ग्रेनुलोमा के दूसरे नाम है प्रेगनेंसी ट्यूमर, इसके कोई नाम है नहीं। और हाइपरप्लास्टिक टाइप जो होता है उसमें कौन कौन से सेल्स ज्यादा होंगे, इसमें सुप्रापेरियोस्टल सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिंजाइवा जब हाइपरप्लेजिया होता है तो कोई ना कोई सेल्स तो बढ़ेगा, लेकिन कौन से सेल्स बढ़ रहे हैं, किस टाइप के, तो यहाँ पे सुप्रापेरियोस्टियल, यहाँ पे वास्कुलर, यहाँ पे पीडीएल वाले और यहाँ पे पेरियोस्टियल। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको नोट्स बनाकर हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, फिर बैकग्राउंड, तो ये माउथ में ज्यादा होता है। ठीक है, ये एडल्ट्स में होता है, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, तो ये इरिटेशन से होता है। कोई भी फाइब्रो जब आपको देखने को मिले ना फाइब्रो एपिथेलियल, तो ये इरिटेशन होना चाहिए, ट्रॉमेटिक वाला होता है। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा तो प्रेगनेंसी के साथ जुड़ा है तो हार्मोनल वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे ओरल ओरिजिन भी पुअर है और हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये आ गया आपका कैलकुलस, कैलकुलस और प्लाक से पेरिफेरल ओसिफाइंग फाइब्रोमा होगा। और पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा वो मेनली ट्रॉमा से होता है। क्लिनिकल एंड हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है, तो वो क्या देखने को मिलेगा उसमें, आपको डोम शेप देखने को मिलेगा, ये थोड़ा पेनलेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे नोड्यूल जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये थोड़ा रेड और ब्लू नोड्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने सारे अलग अलग फीचर्स इसमें होते हैं। फिर एपिथेलियम, इसमें हाइपर पैराकेराटोसिस होता है। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग टाइप के साइज देखने को मिलेगा। फिर स्टोमक के अंदर हाइलिनाइज्ड बैंड्स देखने को मिलेगा फाइब्रोमा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा में जाइंट सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे अलग अलग करके आपको सारे डिसऑर्डर्स के नोट्स बनाने हैं, ये तो रेडीमेड है आपके लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो जाएंगे और सीमेंटम भी आएगा, क्योंकि ये पेरिडोंटम पेरिडोंटल टिश्यूज के साथ रिलेशन रखता है। ठीक है, अब लोकेशन, तो ये जिंजाइवा में देखने को मिलेगा, ये आपको बक्कल जिंजाइवा फेशियल सरफेस पर देखने को मिलेगा जिंजाइवा में, ये जिंजाइवा में और ये भी जिंजाइवा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आपको उसके हिस्टोपैथ के डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि ये अलग डिसऑर्डर है। ठीक है, ट्रीटमेंट, तो उसको आपको निकाल देना है, एक्ससाइजन कर देना है। ठीक है, सब में एक्सcision ही आएगा, यहाँ पे इटियोलॉजिक फैक्टर्स को निकालना है। ठीक है, यहाँ भी एक्सcision करना है, और पेरिडोंटल इन्वॉल्वमेंट है इसलिए आपको स्केलिंग करना है, रूट प्लेनिंग करना है, और यहाँ पे बोन तक उसको निकाल देना है, पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा को। ठीक है, फिर आता है हाइपरप्लास्टिक लीजन्स। तो हाइपरप्लेजिया क्या होता है, कोई भी सेल्स होते हैं ना,
वो अचानक बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी बढ़ जाती है, तो थोड़ा टिश्यूज में एपिथेलियम में चेंज आता है। उसको इन्फ्लेमेटरी भी होता है और रिएक्टिव लीजन भी बोल सकते हैं। उसके स्टिमुलाई ट्रॉमा होता है, कभी कभार हॉर्मोन्स होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ऐसा कोई एग्जैक्ट वो इटियोलॉजी नहीं है, लेकिन ट्रॉमा हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इक्विलिस फिशर एटम, ये क्यों होता है? तो आपका कोई डेंचर होता है ना, वो टिश्यूज के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ थोड़ा क्या होगा, टिश्यूज में थोड़ा इरिटेशन होगा, सेल्स इतने सारे ग्रो हो जाएंगे, तो वो डेंचर के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, तो आपको कट जैसा दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डेंचर आया, तो ये सोल सेल्स ने यहाँ पे एपिथेलियम बना दी, ठीक है, तो ये इक्विलिस फिशर एटम है, वो डेंचर के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। उसमें आपको फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट आएगा, एक्सिजन करना है और डेंचर को आप फिर से नया बना देना है, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेटरी पेपिलरी हाइपरप्लेसिया, ये जब हमने प्रोस्टो किया था तब ये आया था, डेंचर के कारण यहाँ पे पेपिलरी हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी पेपिलरी हाइपरप्लेसिया, ठीक है, हार्ट पैलेटर पे देखने को मिलेगा और माउथ ब्रीदर्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको कैंडिडियासिस से थोड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके उसकी ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो ये डेंचर स्टोमेटाइटिस नहीं है, डेंचर स्टोमेटाइटिस थोड़ा अलग रहेगा, ये है डेंचर पेपिलोमेटोसिस, इन्फ्लेमेटरी पेपिलरी हाइपरप्लेसिया। उसमें ट्रीटमेंट, तो डेंचर आपको रिलीविंग करके देना है, ठीक है, स्ट्रेस रिलीविंग एरियाज जो होते हैं ना, उसको ध्यान में रखकर डेंचर आपको बनाना है, नया वाला, ठीक है। फर्स्ट तो क्या आएगा उसमें, रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी। जब भी पेशेंट को ये लगता है कि भाई इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको इन्फ्लेमेशन का इटियोलॉजिक एजेंट को निकालना है, तो ये आएगा रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी, ठीक है। इक्विलिस ग्रेन्युलोमेटोसा, ठीक है, इक्विलिस क्या होता है, वो एक ग्रेन्युलेशन टिश्यूज का हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ हो जाता है, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन सॉकेट होता है ना, वहां पे, ठीक है, वो पाइजेनेटिक ग्रेनुलोमा जैसा ही दिखेगा, ठीक है। फिर ये इसको अवॉइड कैसे करते हैं, तो जब भी आप एक्सट्रैक्ट करो ना, तो प्रॉपर इरिगेट करिए, सॉकेट के अंदर कोई भी टिश्यू ना रह जाए ग्रेनुलेशन, उसका आपको ध्यान रखना है। फिर ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया, ये जब हमने पेरियो किया तब पढ़ा हुआ था, पेरियो के लेक्चर्स और पेरियो के वीडियो लेक्चर्स में ये ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, इंटरडेंटल एरिया में होता है और क्राउन को पूरे का पूरा कवर कर देता है, ठीक है। लेजन्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, पेल पिंक होते हैं, ठीक है। आगे एंटीरिजन्स में वो सीवियर होता है, और ड्रग एक बार आपने स्टॉप किया तो वो रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या आएगी, तो माउथ वॉश देना है आपको, जिंजावेक्टोमी कर सकते हो, फ्लैप भी प्रोसीजर कर सकते हो, मेडिकेशंस को स्टॉप या ऑल्टर कर देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से सिस्टमिक डिसीज एसोसिएटेड है जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया के साथ, तो जितने भी नाम आ रहे हैं आप बता दो, लुकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, लिम्फोमास, सिस्टमिक वाले वैगनर्स, सार्कोइडोसिस, क्रॉन्स, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस प्राइमरी, ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रीजन्स हमने डिस्कस किए, आपको कोई भी डाउट हो तो हमको बताइए, तो हम उसका भी सॉल्व करते हैं, या कोई भी टॉपिक आपको सॉल्व करना है, फिर से पढ़ना है तो भी बता दीजिए, हम वो टॉपिक आपको फिर से पढ़ाएंगे। तो गाइस, जो भी लोग यूट्यूब पर ये लेक्चर देखने वाले हैं आगे जाके, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ये बेहतरीन नोट्स हमने आपको बना के दिए है ताकि आप इजीली रिवीजन कर सको। ये खाली 42 पेजेस की नोट है,
तो आपको अगर खरीदना है तो डेंटल जो एप्लीकेशन है उसमें डेंटल नोट्स का जो सेक्शन है उसमें आपको परचेज कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट की ऐसी शॉर्टकट नोट्स बनाई है जिसमें आप 6 महीने में ही कोर्स पूरा कर सको। अगर आज के लेक्चर में कोई आपको डाउट हो तो आप बाद में भी रिकॉर्ड लेक्चर्स देख रहे हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो ग्रुप में। तो गाइज, इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम एंड गुड नाइट। कोई डाउट तो अभी तक किसी ने बताया नहीं है, इसलिए हम लेक्चर एंड करने वाले हैं। हमारी वेबसाइट जो है उस पर जाके आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज से आपको क्या होगा, आपका बूस्ट होगा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रिपरेशन का जो लॉजिक होता है वो डेवलप होगा। आप बार बार टेस्ट दोगे तो एक ही लॉजिक बार बार आपके माइंड पर आएगा कि ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर आएगा। इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, so it's time for telling you bye bye. Have a nice time and good night.